second, I'll get it. Yeah, please get it, no problem. I've started recording this video. So this is officially, we are started with the next topic, okay? That is number line wala. Actually, the teacher explained us, but I was not able to understand her explanation. So I'm still more curious to learn it. Yeah, of course. I'm going to explain you properly. No problem. Thank you so much, sir. Yeah. Have they done this in the school? Proofs of irrationality? Yes, sir. Sir, they have completed one Yes, day. sir. Oh my god, they are going fast, man. Really, sir. They are, Actually, ma'am, she actually explained us the formula and all, the process and all, and gave us all homework. oh my god. So there is no like how we did the revision for what is irrational, what are the rules. Have they done No, that? sir, they are No, on the bullet sir. train. They are on the bullet train. Yes, sir. Where they want to reach, man? I don't understand. सर हमें तो Today नंबर लाइन भी they नहीं पढ़ाया है और today फिर they वो लोग बोल completed रहे हैं thirds होमवर्क. also. अच्छा. Today they completed thirds also. Now Okay. tomorrow or Monday they will start 1C also, sir. No problem. We'll also do that, but we'll do it properly. But for that, I Yes, need sir. your support, guys. Sure, So, sir. तो उसमें क्या है पता है? See, many of you are doing the work properly. Many of you are actually putting the efforts, and I can see that in the homework. But some of you need to understand कि ये जो direct answer वाला thing है ना, that will not help us to reach anywhere. That will be just a formality, guys. मतलब मैंने कर दिया, सर ने बोला है, मैंने होमवर्क कर दिया, बस हो गया. ये नहीं करना है ना अपने को. वो तो स्कूल में हो ही रहा है ना फॉर्मेलिटीज़. तो मेरे साथ भी अगर तुम सेम चीज़ करोगे तो हाउ विल सी द ग्रोथ. अगर अपने को ग्रोथ और चेंज देखना है कुछ, ठीक है, अपने मैथ्स में, तो वी हैव टू चेंज आवर मेथड्स. वी हैव टू डू इट विथ ऑनेस्टी एंड विथ अटमोस्ट डेडिकेशन. ठीक है. तो अगर नहीं आता है ना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि मुझे नहीं आता है, तो मेरे से तुम बात कर सकते हो ना. आई कैन हेल्प यू, आई एम हियर टू हेल्प यू. बट अगर तुम फटाफट काम ख़त्म करने की अगर उसमें रहोगे तो देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गेज कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता है. अगर मैंने ये होमवर्क जस्ट रैंडमली चेक कर दिया होता तो मैं समझता कि हाँ अरे सबको आता है. अब मैंने जब सबको पूछा रीजंस क्यों है तो मैनी ऑफ यू वर कंफ्यूज्ड. तो अभी हमने डिस्कस किया, नाउ इट इज़ क्लियर. अब हम आगे जा सकते हैं. तो जिसने भी ये प्रॉपरली नहीं किया है, आई एम अगेन टेलिंग देम कि प्लीज़ डू इट, रीडू इट एंड सेंड इट टू मी. ठीक है. जिसने भी प्रॉपरली नहीं किया, दैट इज़ ओम, अनन्या एंड धानी. बाकी क्रिश एंड प्राजक्ता, आई एम वेरी हैप्पी विद योर वर्क. जस्ट राइट द रीजंस वेर एवर आई हैव टोल्ड यू. ठीक है. ग्रेट ग्रेट Okay, ग्रेट, sir. सुपर्ब. धानी, कीप योर कैम ऑन. इफ़ यू आर ईटिंग और समथिंग, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. अगर तेरे पीछे आवाज़ है, माइक ऑफ कर दे, नो प्रॉब्लम. कैम ऑन रख ताकि मुझे पता चले कि तू उधर ही है. ठीक है. नाउ आई होप एक्सेप्ट धानी एवरी वन हैज़ गॉट देयर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है. तुम्हें चाहिए कंपस, उसमें पेंसिल होना चाहिए, और तुम्हें चाहिए एक स्केल, एक अलग से पेंसिल चाहिए, एक प्रोट्रैक्टर चाहिए. दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू विल नीड. ठीक है. अगर ये सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास तो यू आर ऑल रेडी टू प्लॉट द नंबर लाइन. परफेक्ट. देन आई थिंक वी आर सेट. वी आर रेडी टू गो विद द नंबर line. Are you guys ready? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Chalo. Now in between, if you cannot hear me or if my screen is frozen, just let me know so that I can explain you properly next time. ठीक है. And I'm also recording this session. It will be put on YouTube so you can view it later. All set? Shall we go ahead? Yes, sir. I want a loud yes sir, loud and clear.
Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Chalo. Now, the first thing. First thing. Plotting root 2 on number line. Plotting root 2 on number line. ठीक है. अच्छा, I would just want to ask any of you who can give me this answer. किसी को रूट 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता है क्या? अप टू 2 डेसिमल प्लेस और 3 डेसिमल प्लेसेस. Anyone knows approximate value of root 2? किसी को पता है क्या रूट 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू? No, sir. नहीं पता है. किसी को याद है लास्ट ईयर हमने लॉन्ग डिवीजन किया था? वी डिड लॉन्ग डिवीजन और इसमें हमने रूट 2 की वैल्यू ढूंढी थी बाय दिस मेथड. डू यू रिमेंबर? Yes, sir. आई जस्ट वॉन्ट टू डू दिस अगेन फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट ये आगे भी तुम्हें काम आएगा और ये क्लैरिटी तुम्हें मिल जाएगी कि रूट 2 की वैल्यू होती क्या है. ठीक है. सबसे पहले हमने रूट 2 से शुरुआत किया बिकॉज रूट 1, कोई बता सकता है रूट 1 की वैल्यू क्या है? रूट 1 कितना होता है गाइस? हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. No idea, sir. So maybe 0.50. रूट 1 की वैल्यू 1 होती है. क्या कर रहे हो? क्योंकि 1 इंटू 1 1 स्क्वायर 1 होता है. अगर 1 स्क्वायर 1 होता है तो रूट 1 कितना होता है? 1. Got it, sir. या रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है. मतलब 1 क्या है? रैशनल नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है. बट 1 के बाद जो नंबर आता है दैट इज रूट 2, उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते बिकॉज इट इज इररैशनल. तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती कितनी है? लेट्स चेक दैट आउट. ठीक है. तो लॉन्ग डिवीजन करेंगे हम लोग. 1 1 जा 1. ठीक है. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर आएगा 1, यहाँ पे पॉइंट आएगा और दोनों जीरो नीचे आएंगे. ये जो ग्रुपिंग है ना, ये तुमने सीखा था 8th क्लास में. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे जो भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस को वापस इसके साथ ऐड करना है. एंड 1 + 1 2. 2 को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लिखना है, राइट में गैप होना चाहिए. अब 2 के आगे एक नंबर मुझे ऐड करना है. 2 के आगे एक नंबर मुझे ऐड करना है सच दैट जो नया नंबर बनेगा 2 डिजिट नंबर, वो नए नंबर को उसी डिजिट से जो नंबर ऐड किया है उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके हम 100 से नज़दीक पहुंच सके. सो आवर आइडिया इज टू रीच क्लोजर टू 100 बट टू रिमेन लेस देन 100. ठीक है. तो मैं क्या करूंगा? 21 1 जा, 22 2 जा, 23 3 जा, 24 4 जा, 25 5 जा, ये सारे प्रोडक्ट मैं ढूंढूंगा. देखा, यहाँ पे मैं जो यूनिट प्लेस पे नंबर ऐड कर रहा हूँ उसी से उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 2 ऐड कर रहा हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 3 ऐड कर रहा हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 4 ऐड कर रहा हूँ तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 5 ऐड कर रहा हूँ तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है. सो 21 1 जा 21, 22 2 जा 44, 23 3 जा 69, 24 4 जा 96, 25 5 जा 125. Are you getting it? So 2 के आगे मैंने एक नंबर डालना है मुझे ताकि मैं 100 से कम और उससे नज़दीक पहुंच सकूं. It should be, the product should be less than 100 but should be nearer to 100. तो मेरे पास प्रोडक्ट मिल चुके हैं मुझे 21 44 69 96 125. इनमें से 100 से छोटा और सबसे नज़दीक वाला नंबर कौन सा है? 96. Great. So 96. So 24 4 जा 96 होता है. Did you understand मैंने क्या किया? यहाँ पे नंबर लिखा 4, ऊपर लिखा 4 कोशेंट में और 24 4 जा 96 यहाँ 100 के नीचे लिख दिया. अब यहाँ 100 - 96 कितना आएगा? 4. और ये 2 0 नीचे आ जाएंगे. अच्छा, अब ये 24 है. 24 नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन है? 4. तो मैं 24 के साथ किसको ऐड कर दूंगा? 4 को. और मुझे मिलेगा
28, ये थोड़ा मुझे लेफ्ट साइड में सरका के लिखना है, ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग. I'm going to do the same thing. 28 के आगे एक नंबर लिखूंगा. जैसे 281 लिखा और फिर मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा. अगर 282 लिखता हूं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. तो 281 1 जा 281, 282 2 जा 282 2 जा तो बहुत बड़ा नंबर होगा. हमें चाहिए 400 से छोटा नंबर. 282 2 जा तो 500 से भी बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है. So sir, of course 8 2 281. 16 एंड 564. तो मतलब ये 400 से बड़ा है, मतलब दिस शुड नॉट बी माई चॉइस क्लियरली. सो आई हैव टू गो विथ 281. 1 जा 281 और मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा आंसर? Sir, 119. 119. परफेक्ट. अब यहाँ पे नीचे 2 0 ऐड कर देता हूँ और इसको लाइन को लंबा कर देता हूँ. यहाँ पे 1 ऐड कर देता हूँ क्योंकि वो यूनिट प्लेस में है. 281 प्लस 1 282 आ जाएगा. अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 282. यहाँ पे एक नंबर डालना पड़ेगा और मुझे 11,900 के करीब पहुँचना पड़ेगा. अब बिकॉज मुझे ये वैल्यू पता है 2824 4 ज़ा जब करोगे तुम तो इससे नज़दीक नंबर आएगा. करके देखते हैं. 4 4 ज़ा 16, 1 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, 4 8 ज़ा 32, 3 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11, 11,296 which is very much nearer to 11,900. So 2824 4 ज़ा 11296. और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ so I'm going to get around 604. Yes, sir. एंड 2 0 और नीचे आएंगे, ठीक है. एंड देन आई विल कंटिन्यू विथ माई लॉन्ग डिविजन. अब तुम्हें एक बात समझ में आ रही है? ये लॉन्ग डिविजन में रिमाइंडर विल नेवर बी जीरो. रिमाइंडर विल नेवर बी जीरो. कैन एनीबडी टेल मी व्हाई द रिमाइंडर वोंट बी जीरो एवर? sir, because this 2 is a not is a prime number. No, it is an irrational number. It's an irrational. या रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर एंड 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो 2 का जो रूट लेंगे हम लोग, इट विल नेवर बी गिविंग यू द रिमाइंडर 0. इट विल नेवर बी गिविंग यू द रिमाइंडर 0. ओ, मैंने 1 बजे और एक क्लास रखा था डाउट सॉल्विंग. मुझे इसको थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा. जस्ट अ मोमेंट. ओके, जस्ट मोमेंट. कुछ लोग आ जाएंगे क्योंकि मैंने 1 बजे दूसरा क्लास रखा था. आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस. ऋषि, Rishi, are you there? Can you hear me, Rishi? Okay. Okay, great. Let's move on. Urmi ma'am, you have bio class today with 10th ICSE at 3 o'clock. Is it extra class or something? Then why 3? Like 3 तो कोई शेड्यूल ही नहीं था ना 10th ICSE का. हाँ, तो फिर ये चेंज करोगे, अब सब चेंज हो जाएगा ना शेड्यूल. अब दे आर ऑल आस्किंग मी के बायो क्लास 3 o'clock है, क्या करूँ मैं. हम लोग अभी मेरा चल रहा है पूरा एक सीक्वेंस में है ना. वी डोंट चेंज द टाइमिंग ना. तो बोल दे उनको, प्लीज बोल दे. हाँ,
नहीं, मेरे को अभी एवरी वीक रखना पड़ेगा डाउट सॉल्विंग, और मेरे इतने बड़े डाउट्स नहीं हैं, छोटे हैं। मेरा हो भी जाएगा शायद 3 बजे तक, बट उनको तू उस हिसाब से फिर बोल दे। एक फिक्स शेड्यूल तेरा मेंटेन कर ले, क्योंकि तेरा ये एक्स्ट्रा क्लास नहीं है ना। Okay, guys, let's get back to the topic. I'm sorry for that disturbance. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये √2 एक इरेशनल नंबर है। 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका रूट कभी निकलेगा नहीं। उसकी जो वैल्यू होगी, उसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा, कोई बता सकता है किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन होगा ये? What kind of decimal? Sir, non-terminating, non-recurring. Very good, Krish. Very nice. This will be the kind of decimal expansion which will be non-terminating, non-recurring. लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करेंगे यार? क्योंकि हमें पता है नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, ठीक है, -3 है। ये सारे नंबर तो फिक्स है उसकी लोकेशन, लेकिन √2 कहाँ पे होगा एग्जैक्टली? उसको प्लॉट कैसे करेंगे? क्योंकि उसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। क्या तुम बोल सकते हो √2 1.4 पे होगा? नहीं, एग्जैक्टली 1.4 पे नहीं होगा, 1.4 और 1.5 के बीच में हो सकता है। लेकिन 1.4 और 1.5 के बीच में भी कितने सारे रैशनल नंबर्स है, तो ये एग्जैक्टली आएगा कहाँ पे? सो वी कैन नॉट प्लॉट √2 ऑन नंबर लाइन जस्ट बाय यूजिंग योर स्केल्स। मतलब तुम डायरेक्टली 1.4 मार्क करके वहाँ पे √2 को प्लॉट नहीं कर सकते। मतलब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता होना ज़रूरी है। तो हाउ डू वी नो द एग्जैक्ट लोकेशन? लेट मी टेल यू, लेट मी शो यू। ठीक है, दिस लॉन्ग डिविजन यू मस्ट रिमेंबर बिकॉज इट विल बी यूजफुल अहेड। सो as we now are aware about the value of √2, it is approximately 1.414. Approximately means √2 lies between which two integers? √2 will lie between which two integers? Sir, 1 and 2. कौन से दो इंटीजर के बीच में √2 आएगा? Sir, 1 and 2. Yes, it will, because its value is 1.414, so it will lie between 1 and 2. ये तो हमें अप्रोक्सीमेट आइडिया आ गया है कि √2 1 and 2 के बीच में ही कहीं होगा, मतलब यहाँ पे √2 होगा। बट देन हाउ टू प्लॉट इट एग्जैक्टली? सो बी रेडी विथ योर वेपन्स, विथ योर इंस्ट्रूमेंट्स नाउ। ओके, सबसे पहले अपने पेज पे सेंटर में मोस्टली एक लाइन बनाओ। अपने पेज के सेंटर पे एक लाइन बनाओ, ये नंबर लाइन ही है। अब इस लाइन पे कोई पॉइंट मार्क मत करना जब तक मैं ना बोलूं, सिर्फ ये लाइन एम्प्टी होनी चाहिए। और इसमें सेंटर से थोड़ा लेफ्ट में, सेंटर से थोड़ा लेफ्ट में 0 लिखो। ठीक है, इतना हो गया? टेल मी यस सर, तो मुझे समझ में आए। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ Yes, sir. आई वॉन्ट यू टू चूज अ स्केल। ये क्या है स्केल? ये स्केल तुमने देखा होगा ग्राफ में। ठीक है, ग्राफ में ये स्केल देखा होगा ना तुमने। तो स्केल का मतलब क्या है यहां पे? टेक 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। टेक 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम 0 से 2 सेंटीमीटर छोड़ के एक मार्क बनाओगे पॉइंट और उसमें लिखोगे 1, फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ के और एक मार्क बनाओगे, उस पे लिखोगे 2, फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ के लिखोगे 3, फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ के लिखोगे 4। ये स्केल लेना क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ। सी इफ़ यू डू नॉट चूज अ स्केल तो ये कंस्ट्रक्शन नहीं होगा प्रॉपर्ली। अपने को अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो स्केल चूज करना पड़ेगा। इतना समझ में आया तुमको? I want a loud and clear yes sir, so that I can go ahead. I can Yes, understand. sir. Great. Yes, sir. Great. Great. Yes, sir. ठीक है, तो तुमने 0 के आगे 1 2 3 4 और 0 के पीछे -1 -2 तक मार्क कर दिया होगा। कितना लेना है स्केल? 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देखो तुम 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, मतलब 2 या 3 आइडियल है। आइडियल, ये आइडियल स्केल है। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारा जो कंस्ट्रक्शन है उसमें एक स्पेस होगा, एक नीटनेस होगी, एक क्लैरिटी होगी। सो यू नीड स्पेस, नीटनेस एंड क्लैरिटी टू शो दैट यू हैव प्लॉटेड द गिवन वैल्यू नीटली। ठीक है, अब हमें कौन सा नंबर प्लॉट करना है? √2। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज कि तुम्हें 2 पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ेगी। आई एम सॉरी, 2 पे नहीं, 1 पे, सॉरी, तुम्हें 1 पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ेगी। यू हैव टू ड्रॉ, मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखता हूँ। स्टेप 1, ड्रॉ अ नंबर लाइन। तुम भी लिख लो ये साइड में स्टेप्स। स्टेप 2, टेक 1 centimeter is equal to 1 unit. Take 1 centimeter is equal to 1 unit. Step 3, draw perpendicular on 1। ठीक है, 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना है? तो अगर तुम्हारे पास कंपस है तो ये इजी हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा कंपस का पॉइंट रखना है 1 पे, कंपस का पॉइंट रखना है 1 पे, और एक ऐसा सेमी सर्कल बनाना है। कंपस का पॉइंट 1 पे रख के एक ऐसा सेमी सर्कल बनाना है। कितना रेडियस होगा सेमी सर्कल का? कितना भी हो सकता है। यू कैन कीप द सेमी सर्कल रेडियस हाउ मच एवर यू वांट। ठीक है, इतना किया सब लोगों ने? Yes, sir. Keep the point of compass on 1 and draw a semicircle below the line। ये मैं तुम्हें लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स हम लोग लेंगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेप, कीप द पॉइंट ऑफ द कंपास ऑन 1 एंड ड्रॉ सेमी सर्कल बिलो द लाइन। सबने इतना किया? Yes, sir. ओके, Yes, sir, done. ग्रेट। अब कंपास की जो विड्थ है ना, कंपास की विड्थ, वो तुम्हें इस पॉइंट से मोर देन हाफ, मतलब सिर्फ यहां तक लेनी है। दिस शुड बी द विड्थ ऑफ द कंपास। ये सपोज तुम्हारा कंपास है और ये पॉइंटर है और ये पेंसिल है यहाँ पे। ठीक है, तो कंपास की विड्थ तुम्हें, ये जो सेमी सर्कल है ना, उसका मोर देन हाफ, मतलब फुल से थोड़ा कम विड्थ लेना है। लिया विड्थ मोर देन हाफ? सेमी सर्कल का मोर देन हाफ विड्थ Yes, sir. कंपास पे लेना है। ले लिया? Yes, sir. अब कंपास का पॉइंट तुम्हें यहां पे रखना है, ये वाले पॉइंट पे, सेमी सर्कल के एक एंड पे। Sir, where, sir? Can you mark it again? this point, can you see that point?
Yes, sir. I put an arrow also. Is my screen frozen? Yes, sir. Yes. रुको. धानी, you can note it down, ना जो मैं लिख रहा हूँ एटलीस्ट. Yes, sir. I'm noting it हाँ, down. और रफ में तू कर भी सकती है, फिर बाद में फेयर में कर लेना. ग्रेट. कैन यू सी माई स्क्रीन अगेन? Yes, sir. ओके. अब Yes, sir. कंपास का पॉइंट यहाँ पे रखो, ये वाला पॉइंट दिख रहा है. कैन यू सी दिस? Yes, sir. और मोर देन हाफ जो डिस्टेंस लिया था ना, उससे उतने ही डिस्टेंस से एक आर्क ऊपर मार्क करो. ऐसे ऊपर ऊपर एक आर्क मार्क करो. अब तुम्हारे कंपास का डिस्टेंस चेंज मत करना. डोंट चेंज द डिस्टेंस एंड पुट द पॉइंट ऑफ कंपास ऑन दिस पॉइंट, दूसरे सेमी सर्कल पे. और यहां से उतना ही डिस्टेंस, मोर देन हाफ वाला जो था, उससे और एक आर्क ऐसे मार्क करो. मतलब तुम्हें 2 आर्क मिल जाएगी. You know what we are doing? We are drawing perpendicular on a given line from a point. ठीक है? Did your is your arc intersecting? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, great. Now I want you to draw a very light line. बहुत ही हल्की सी लाइन बनानी है तुम्हें. From point 1 to this point of intersection. ऐसे make a very very light line. मैं सब लिख लेता हूँ साइड में. अभी तक हमने क्या किया? कीप द पॉइंट ऑफ कंपास ऑन 1 एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल बिलो द लाइन. ये हमने किया. From the end of semicircle, take more than half distance. From one end of semicircle, take more than half distance and draw an arc above point 1. From another end and Sir. draw one more arc cutting the previous arc and join the point of intersection of arc, join the point of intersection of arc to point 1. ठीक है? ये जो जितनी भी चीज मैंने लिखी है ना यहाँ पे, these are all the steps to draw perpendicular, जो तुम्हें याद रखने हैं. These are the steps to draw the perpendicular on 1. 1 के ऊपर जो perpendicular बनाया black line, उसके steps है. I hope you have noted it down and you should be able to draw perpendicular whenever I tell you. मैं फिर से नहीं बताऊंगा कि perpendicular ऐसे बनाना है. Just remember it. ठीक है? Sure, sir. Okay, so I will just erase all this. ठीक है? And I will draw a simple straight forward perpendicular. Okay, now very important. तुम्हारा जो कंपास है ना, कंपास, उसका पॉइंट 0 पे रखो और पेंसिल का जो पॉइंट है, पेंसिल को 1 पे रखो. कंपास का पॉइंट 0 पे, पेंसिल का पॉइंट 1 पे.
कंपास का पॉइंट 0 पे, पेंसिल का पॉइंट 1 पे. कैन यू टेल मी हाउ मच डिस्टेंस हैव यू मेजर्ड ऑन योर पेंसिल, ऑन योर कंपास? कितना डिस्टेंस मेजर किया है, अंदाजे से बताओ. 0 to 1. सेंटीमीटर. हाँ, सॉरी. Sir, it is 2 centimeters. Exactly. Sir, So 2 you centimeter. have Because we measured. took a scale, right? You have, yeah, because the scale is 1 unit is equal to 2. तो 0 से 1 तुमने कंपास पे मेजर किया, that is 2 सेंटीमीटर. अब कंपास का पॉइंट 1 पे रखो. Put the point of compass on 1. ठीक है, and cut an arc on this perpendicular. और एक आर्क कट करो परपेंडिकुलर पे. ठीक है, और ये जो आर्क कट किया है ना, इस पॉइंट को तुम्हें नाम देना पड़ेगा. So you give this is let's say 0 or O, this is A and this is B. Did you understand? ये 0 है, ये A है, ये B है, या ये O है, ये A है, ये B है. Can you tell me how Sir, much is AB? AB कितना? Sir, it is 2 centimeter. Yeah, 1 unit. हम लोग इसको बोलेंगे 1 unit. Sir, I had a doubt again. Yes, please. Sir, this arc which we made is above the arc which we made before with the semicircle. Is that okay? Is that fine? It's fine. It's fine. Actually, वो जो semi circle वाला arc है ना, perpendicular वाला, it should be Yes, so sir. light that you should be able to erase it later. But if you are not Oh. erasing it, it's okay. Don't make it very dark. Otherwise क्या होगा, बहुत Okay, hodgepodge sir. हो जाएगा. Sure, sir. Generally, I'm not sure whether your school teacher has told you to use compass to draw the perpendicular or not. So you can draw the perpendicular with your protractor also. But technically इसमें हम लोग सिर्फ कंपास का ही यूज करते हैं. ठीक है? Sir, Yes, sir. Okay, sir, can you hear me? I can hear you. Dhani, tell me. Sir, can you repeat the fourth line, the join the point 1? Join the point of intersection of arc to point 1. ये तो बहुत पहले था यार. तुम्हारी आर्क यहाँ पे बनी थी ना, ऐसे. Yes. उसको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को तुम्हें ये 1 से ज्वाइन करना था. मतलब ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री. किया इतना? Yes, sir. धानी? Yes, sir, I did it. Is everyone done with this much? Yes, sir. Done with this much. ठीक है, तुम्हारा जो पहले वाला आर्क है शायद वो यहाँ पे हो सकता है ऐसा, या इसके नीचे भी हो सकता है. बट यू हैव टू कट ए बी एज 1 यूनिट. इज एवरीवन डन विद दिस मच? Sir, yes, sir. ओम इतना हो गया तेरा? ओके. अनन्या इतना हो गया? अनन्या? Yes, sir. प्राजक्ता इतना हो गया? प्राजक्ता? Yes, sir. Krish, you are done with this much, right? Yes, sir. And Dhani, you have noted down everything, right? Yes, sir. Okay, great. Now the next step is join OB. Join OB. ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेप 4 लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करके. तो स्टेप 4 में क्या आएगा? मार्क 1 यूनिट is equal to 2 centimeter on perpendicular line. ठीक है. स्टेप 5 join OB. ठीक है, OB को ज्वाइन कर दिया. Now the important part comes. Now ये जो पार्ट मैं लिख रहा हूँ ना, this is kind of a justification. So note it down please everyone. In triangle OAB,
Do you all see triangle OAB? Do you all see triangle OAB? Yes, sir. Sir, can you hear me? Yes, I can hear you now. Yes, sir, we can see. Okay, in triangle OAB, angle OAB is equal to 90 degree. ये वाला 90 है ना? Why is it 90? क्योंकि ये तो हमने ही बनाया था परपेंडिकुलर Yes, sir, with the compass, with the compass and all, so it is 90 degree. So मतलब triangle OAB is a right angle triangle. ठीक है? Therefore, by Pythagoras theorem, you all know what is Pythagoras theorem, right? By Pythagoras theorem, OA square plus AB square is equal to OB square. OA square plus OB square is equal to OB square. Prajakta, can you tell me what is Pythagoras theorem? I don't, Sorry? I don't even remember it because last year it wasn't. Sir, can I tell? Yeah, please, Krish. Sir, it is B square plus C square is equal to A square. Yeah, means perpendicular square plus base square is equal to Is equal to hypotenuse. हाइपोटेनियस स्क्वायर. ये वाला परपेंडिकुलर है ए बी, ये ओ ए बेस है. इन दोनों के स्क्वायर का सम हाइपोटेनियस मतलब ओ बी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इस ट्राइंगल में उसके स्क्वायर जितना होगा. दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम इज़ अ बेसिक थिंग एंड मुझे लगता है कि ये अर्लियर स्टैंडर्ड्स में ये लोग सिखा देते हैं. बट एनी वन हु डजेंट नो पाइथागोरस थ्योरम, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, इसका नाम है लेट्स से पी क्यू आर. इसमें क्यू आर लेट्स से बेस है और पी क्यू है हाइट. इसको मैं हाइट बोलूँगा. तो पी आर जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस. तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि जो पी आर स्क्वायर है हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो हाइट के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम जितना होता है. मतलब पी आर स्क्वायर इज पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर और हाइट स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square. This is your Pythagoras theorem. तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे Pythagoras theorem अप्लाई किया. कौन से ट्राइंगल में? OAB में. अब मुझे चाहिए कि तुम मुझे बताओ what is OA, how much is OA? OA Sir, कितना? 2 centimeter. Not in centimeter. We will always talk in units. सेंटीमीटर तो हमारे पर्पस के लिए है, क्लैरिटी के लिए. Sir, 1 unit. हाँ, तो मैं ओ ए की जगह पे 1 लिख सकता हूँ. 1 स्क्वायर. कैन एनीवन टेल मी ए बी कितना है? ए बी Sir, 1 unit. Sir, 1 unit. वेरी गुड. ए बी भी 1 यूनिट है बिकॉज वो हमने ही मार्क किया है. तो यहाँ भी आएगा 1 स्क्वायर एंड इनका सम स्क्वायर का सम हो जाएगा ओ बी जितना. सो ओ बी स्क्वायर कितना होएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो ओ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1. सो ओ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2. ओ बी स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करके कितना मिला? 2. सो कैन यू टेल मी अगर ओ बी स्क्वायर 2 है हाउ मच विल ओ बी बी? स्क्वायर Sir, रूट it will अगर be दोनों root साइड 2. ले लेते. हाँ, It will be root 2. यू आर परफेक्टली राइट. ठीक है, ओ बी विल बी रूट 2. तो मतलब ये जो लाइन है उसकी लेंथ इज ऑटोमेटिकली इक्वल टू रूट 2. कौन से लाइन की लेंथ? ओ बी. ओ बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? रूट 2. Now coming to the final step. Coming to the final step. Put your point of your compass on point O. Can you put the compass on point O? Now take the Yes, distance up to B. OB जितना distance ले लो. I am writing step 6 here. Take distance OB
on compass. Can you repeat? कंपस का पॉइंट ओ पे रखो और ओ बी जितना डिस्टेंस कंपस पे मेजर करो. टेक डिस्टेंस ओ बी ऑन कंपस. इतना किया सबने? Yes, sir. Okay, great. Now, keeping the point of compass on O with distance equal to OB, draw an arc from B to the line. क्या करना है? कंपस का पॉइंट O पे रखते हुए डिस्टेंस OB से इक्वल लेना है और B से एक आर्क बनानी है. कहाँ पे बनानी है ये आर्क? लाइन के ऊपर. मतलब कंपास का पॉइंट O पे, OB जितना डिस्टेंस और B से एक आर्क ड्रॉ करनी है जो लाइन को यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे कट करेगी. This point which you have got right now, this point which you have got right now is an important point because that is root 2. ये है root 2 Yes, का sir. location on number line. This is the location of root 2 on number line. This is the location of root 2 on number line. Got it, sir. Yes. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? Sir, now, no, sir, till now, no doubts. Okay. Great. I would like to ask Om. Om, तुमने इतना किया? Yes. Yes, sir. तुम्हें कोई डाउट है इतने में? No, sir. ओके. व्हाट अबाउट धानी? तुमने ये सब नोट डाउन कर दिया? Yes, sir. धानी आवाज नहीं आ रहा है. अनन्या? Yes, sir. Ananya, Yes, sir. have you done all the things which I have showed you? Yes, sir. And also you have taken down the steps, you have noted down the steps which I have told? Yes, sir. Okay, ठीक है. मतलब तुम्हारा ये कंस्ट्रक्शन रूट 2 का कंप्लीट हुआ है विथ स्टेप्स एंड विथ जस्टिफिकेशन. ठीक है. सो डू क्विकली डू वन थिंग. ये पूरे पेज का जो भी तुमने किया है अभी, उसका एक फ़ोटो खींच के मुझे ज़रा भेजो फटाफट. मुझे चेक करना है तुमने सही किया है या गलत किया है. सो फॉर एवरीवन, आई थिंक प्राजक्ता इज़ नॉट देयर इन दिस सेशन. उसका इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू चल रहा है शायद. तो फॉर एवरीबडी आई वुड लाइक टू जस्ट से दिस, प्रैक्टिस रूट 2 थोड़ा सा बार बार. ठीक है. तो तुम्हारा ये Okay, क्लियर sir. हो जाएगा. अच्छा, दूसरा आई वांट यू टू प्रैक्टिस दिस. ये जो मैंने सिंप्लीफिकेशन सिखाया था ना लास्ट क्लास में, Yes, sir. इसको प्रैक्टिस करो प्लीज़ अच्छे से यार, क्योंकि ये आगे तुम्हें अभी बहुत सताने वाला है सर्ड्स में. सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस करो, डिवीजन प्रैक्टिस करो, एडिशन तो अभी तुम्हें पता चल गया है क्या है, और प्लॉटिंग वाला प्रैक्टिस कर लो तो देन विल बी थ्रू. अच्छा, और जिन लोग ने ये होमवर्क प्रॉपरली नहीं किया है वो लोग वापस करके मुझे भेजेंगे. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 प्रॉपर स्टेप्स और स्टेटमेंट्स और रीजंस के साथ. ठीक है. सर And मैंने then- टू क्वेश्चन किए हैं जैसे, तो मैं सिर्फ आपको फर्स्ट और फोर्थ वाला करके भेजो ना, फर्स्ट और थर्ड वाला. फर्स्ट और थर्ड वाला. यस. ठीक है. ओके सर. ओके, ग्रेट, नो प्रॉब्लम. तो नेक्स्ट क्लास में मंडे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, एंड विल गो एंड विल फिनिश दिस पार्ट ऑन मंडे इटसेल्फ. Okay, sir. We should be able to finish.
ठीक है? Yes, sir. Alright, Thank you, sir. guys. Bye, sir. Okay, bye. See you later. Bye sir, Bye. thank you. Bye.